Ladies and gentlemen, His Holiness has arrived in the auditorium. Please settle down. On behalf of India Foundation and India Habitat Center, we welcome His Holiness Jagat Guru Shri Shri Vidhushekhara Bharati Mahaswamiji Jagat Guru Shankaracharya of Dakshinamay Shri Sharda Peetham Sringeri. Ladies and gentlemen, to participate in this program, His Excellency the Vice President of India was to come, but due to security reasons, he would be addressing us online. So, without wasting much time, I'll request His Excellency Shri C.P. Radhakrishnan, the Honorable Vice President of India, to kindly make his remarks. It gives me immense joy to be with you all in this spiritual assembly. We all are fortunate enough to receive the blessings of His Holiness Jagatguru Sangaracharya Sri Sri Vidhushekhara Bharati Mahaswamiji at my residence on last Thursday, and I had accepted this invitation for the purpose of hearing Mahaswamiji's spiritual discourse on the topic Hindu religious institutions, traditions, customs, and interreligious engagements. Mahaswamiji ji is the esteemed successor designate in the unbroken lineage of Jagatguru Sri Sangaracharya. He continues to illuminate the world through the eternal wisdom of Advaita Vedanta from the sacred Dashinam Naya Sri Sarada Bidam at Sringeri. Maha Swamiji, your holiness and your gracious presence sanctify not just this hall, but also the thought process of each person who has come here to listen to you. Your words have the power to elevate our minds and move our thoughts away from negativity, pessimism, and hatred. Through your words, may everyone present direct their thoughts towards positivity, optimism, and compassion. Adi Sankaracharya ji traveled across Bharat, revitalizing Sanatana Dharma and unifying diverse philosophical streams. If Adi Sankaracharya is not there, then United India today may be little difficult. What Adi Sankaracharya ji has done on those days is remarkable achievement. He then chose Sringeri as the seat of the first of the four Amnaya Bidam. Values such as compassion and selflessness have been the guiding principles of the Sringeri Mud for over 12 centuries.
The Sringeri mud has preserved priceless traditions such as rigorous study of the Vedas and Shastras, promotion of Sanskrit learning, and nurturing of classical arts. The mud has also trained generations of scholars, acharyas, and seekers. Through their acceptance of people of various backgrounds, these Pedums have lived the philosophy of the Vedic principle of Vasudhaiva Kudumbakam, the world is one family. The topic chosen by India Foundation for today's discourse is Hindu religious institutions, traditions, customs, and inner religious engagements hold relevance today. Bharat Sanatana Dharma has taught the world about the importance of seva. It says service to mankind is the service of God. Muds, temples, ashrams, and Vedams have been the living livelihood of Bharatiya Sanskriti, preserving our Dharma, nurturing our ancient knowledge, serving the society, and fostering harmony among all faiths. Our traditions and customs for ages have always focused on Sandulya. Bharat has a unique civilizational character. It has been the birthplace of many religions. We have embraced every tradition, every religion that has sought sanctuary on its land. Your Holiness, your profound insights today will shed light on the enduring significance of our ancient tradition. They will help in steering us towards individual enlightenment and also play their role in creating a harmonious and inclusive society. I appreciate Dr. Ram Madhav and the Indian Foundation for organizing this special discourse. May Ma Sarada bestow her choicest blessings upon all of us. Jai Hind, long live Mother Bharat. God bless all of us. Thank you, Excellency, for taking time out from your busy schedule to give these remarks. I'll now request Dr. Ram Madhav, President of India Foundation, to kindly make his welcome remarks. परम श्रद्धेय जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी के श्री चरणों में मेरा सादर नमस्कार समर्पित करता हूँ। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत पावन और आनंद का अवसर है कि पूज्य महास्वामी जी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपना विचार हम सबके सामने रखने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। जैसे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने अभी कहा है, यह एक ऐसा संप्रदाय और ऐसा मठ है जिसका इतिहास कम से कम 17-18 शताब्दियों पुरानी है। वैसे तो आदिशंकर के जन्म तिथि को लेकर अलग अलग काल निर्णय है। एक काल निर्णय उनके जीवन काल को 8वीं सदी में रखता है। आदिशंकरा's life timeline has two different views, two different opinions. One version places it around 8th century AD, but the other version, more traditional version, places it around 5th-6th century BC. लगभग 800 साल का, लगभग 1200-1300 साल का अंतर रहता है। कुछ भी हो, उस संप्रदाय के अति प्राचीन जो 4 धाम आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से स्थापित हुए, उसमें पहला मठ श्रृंगेरी मठ रहा है। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आदि शंकराचार्य जी का जो योगदान रहा है हिंदू धर्म के
विस्तार और प्रसार में, उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी हमारे सामने विचार रखा ही है। तो ऐसे संप्रदाय से आने वाले उस पीठ के, उस मठ के उत्तराधिकारी जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे सामने है। हम सब अभिभूत है। इस कार्यक्रम में हिज एक्सेलेंसी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को उपस्थित रहना था। वे तो काफ़ी आग्रह रख रहे थे कि मैं जरूर अवश्य रहूँगा, पर इस समय दिल्ली का कुछ माहौल ही ऐसा है कि कुछ सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं हम सबको बाधित कर रहे थे। यानी अगर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को यहाँ आना होता तो आपके पहले के 3 लाइन्स को खाली रखना पड़ता था। तो इस हाल में संख्या को रखना भी संभव नहीं हो रहा था, और भी अन्य प्रकार के कुछ सुरक्षा के संबंध के समस्याएं थी। इसलिए हमने एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट रखा कि वे आना चाहते थे, हम चाहते थे कि वर्चुअल एड्रेस हो। हम बहुत आभारी है उपराष्ट्रपति जी के लिए कि इस अनयूजुअल रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया और आज उनका संदेश हमको प्राप्त हुआ है। और हम परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी का संदेश, संबोधन सुनेंगे। उनका बेनेडिक्शन हमारे सामने रहेगा। और वैसे तो कार्यक्रम हमारा वहीं तक सीमित है, और इंडिया हैबिटेट सेंटर के जो अध्यक्ष और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी श्रीनिवास जी, जो सीनियर IAS ऑफिसर है, वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। एक ऑफिशियल मीटिंग में थोड़ा विलंब हुआ उनका। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जिन भक्तों को पूज्य महास्वामी जी का आशीर्वाद लेना हो, वो एक लाइन से इस साइड से मेरे दाहिने तरफ से आएंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर बाई तरफ से नीचे जाएंगे। ऐसा प्रावधान है। थोड़ा अनुशासन से वो कार्य भी, उसके लिए भी महास्वामी जी अपना थोड़ा समय हमारे साथ रखेंगे। इतना ही इस समय आपके सामने विचार रखते हुए आप सबको एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, और महास्वामी जी को और महामहिम उपराष्ट्रपति जी को अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद राम माधव जी। अब मैं परम पूज्य जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी जगत गुरु शंकराचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अनुग्रह भाषण दें। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आज परम पवित्र हमारे इस भारत देश के ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली में इस इंडियन हैबिटेट सेंटर में यहाँ के आप सभी लोगों की उपस्थिति में आदरणीय राम माधव जी के विशेष योगदान से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहाँ हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान राधाकृष्णन जी का भी एक संदेश यहाँ प्राप्त हुआ है। उस संदेश के रूप में आज उपराष्ट्रपति जी हमारे साथ ही हैं। उन्होंने अपने संदेश में जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी के विषय में और इस दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के विषय में कुछ विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। उससे हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। हमारे इस देश में बहुत समय पहले
एक महापुरुष थे, उनके मन में एक समय में एक विचार आया था कि मैं एक विशिष्ट समाज, एक अच्छा समाज का निर्माण करूं। समाज में लोग अच्छा मार्ग को छोड़कर बहुत लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो इनको अच्छा मार्ग में जाने की प्रेरणा दूं। उसके लिए मैंने शास्त्रों से, जो महापुरुष होते हैं उनकी सेवा से जो कुछ भी विचार सीखा हूँ, उनको मैं समाज के लिए उपदेश करूँगा। समाज में हर एक व्यक्ति तक पहुँचाकर ठीक मार्ग में जाने की प्रेरणा दूंगा। ऐसा सोचकर एक अच्छा समाज निर्माण करके अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न उन्होंने किया, एक महापुरुष ने। परंतु उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, ऐसी इच्छा थी। लेकिन उस समय में एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आई थी कि अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने की इच्छा है, परंतु इस काम को मैं कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले किन को इन विचारों के बारे में उपदेश करूं? कैसा इस काम का आरंभ मुझे करना है? कौन मेरे उपदेशों को सुनने के लिए तैयार हैं? ये बात उनको समझ में नहीं आई थी। तब उन्होंने सोचा था कि इसके लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहला उन्होंने विचार किया, सोचा था मन में, जो महाराज होते हैं, जो देश का प्रशासन करते हैं, उनके पास जाकर सबसे पहले उनको इन विचारों के बारे में उपदेश करूंगा। क्योंकि प्रशासन से जो कहा जाता है उसी का अनुसार सभी लोग चलते हैं, सभी लोग उसी को सुनते हैं और सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का अर्थ ही यह है कि जो कहा जाता है, जो प्रशासन किया जाता है, उसको सुनना ही चाहिए। अगर उसको हम नहीं सुनते हैं तब उसका दंड हमें मिलता है। इसीलिए उसको प्रशासन कहते हैं। उपदेश और प्रशासन दोनों में ये फ़र्क है। जब हम कभी उपदेश करते हैं, अगर कोई नहीं सुनेगा तब उसका, अगर वो सुनेगा तो अच्छा है, अगर नहीं सुनेगा तो नुकसान उसको ही होगा। लेकिन जब प्रशासन किया जाता है, एक शासन किया जाता है, तब उसको तो सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उसका दंड होता है। इसीलिए जो प्रशासन करने वाले लोग होते हैं, उनके पास जाकर उनको अच्छे अच्छे विचारों के बारे में उपदेश करूंगा। तब उनके द्वारा इस दुनिया के आम जनता तक ये पहुंचेगा, मेरे विचार पहुंच जाएंगे। ऐसा सोचकर जो महाराज होते हैं, जो प्रशासन करने वाले अधिकारी लोग होते हैं, उनके पास गया, इन विचारों को लेकर उनके पास गया। परंतु क्या हुआ, जो प्रशासन करने वाले लोग थे, जो महाराज था, जो अधिकारीगण थे, उन्होंने क्या किया, ऐसा कोई आदमी आ रहा है, इस बात को सुनकर ही उनको रोक दिया, उनको अंदर ही आने नहीं दिया। और महाराज ने कह दिया कि अपने सैनिकों से कह दे कि उसको अंदर छोड़ना मत, उसको वहीं रोक दो और वहीं से बाहर भेज दो। मैं कुछ काम में हूँ ऐसा कहकर उसको बाहर भेज दो, यहाँ मत आने देना, ऐसा कह दिया। तो ये उनके पास जा नहीं पाया, कह नहीं पाया। अच्छे अच्छे विचार थे जो समाज की भलाई के लिए। फिर से उन्होंने सोचने लगा कि मैं क्या करूं। महाराज के पास तो जा नहीं पाया, उनसे कह नहीं पाया, तो मैं अब किन से कहूं। फिर से सोचा और उनको लगा कि ये काम करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास जाएंगे। उनके पास जाकर अगर उनको हम उपदेश करेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ विचार, नए विचार उनके सामने आता है, तब उसे ठीक से जानने के लिए पंडित लोगों के पास जाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास जाकर ही उनसे पूछकर, ठीक मार्ग को उनसे पूछकर और आगे चलते हैं लोग। तो ऐसा हम करेंगे, जो पंडित लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे और उनके द्वारा लोग तक पहुंच सकता है। ऐसा सोचकर गया। पहले पंडितों के पास गया और उनको
उनसे कहना शुरू किया। कुछ बातों को सुनते ही जो पंडित लोग थे वो उनको बहुत गुस्सा आ गई थी। उन्होंने कहा था कि हम इतना कुछ पढ़ के इतने बड़ा पंडित बन गए हैं, आज तुम आके हमें सिखाओगे? हम सब कुछ जानते हैं, तुम कौन है हमें सिखाने वाला? हम तो सब कुछ जानते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ के आए हैं, आज तुम हमें सिखाओगे? तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सब कुछ जानते हैं। तब इसने कहा, नहीं, आप हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत सारे किताबों को पढ़कर आप इस स्थान में आए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन समाज का निर्माण के लिए आपसे कुछ काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसे समाज तो गलत रास्ते में जा रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बातों को, ऐसा इन्होंने कहा। तब पंडितों ने कहा था कि हमें तुमसे कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा कह दिया। तो उनको भी कह नहीं पाया, तो ये फिर सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, इनसे भी मैं कह नहीं सका हूं, तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बहुत समय तक सोचने के बाद उनको लगा कि मैं जब महाराज के पास गया या तो पंडितों के पास जाकर उनसे कहने के लिए सोच रहा था, ये सब मैंने क्यों किया? लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरे जो अच्छे अच्छे विचार है, एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए जिन विचारों की आवश्यकता है, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, सीधा मैं लोगों के पास ही जाऊँगा, आम जनता के पास ही मैं जाऊँगा, जाकर उनको ही सब कुछ कहूँगा। ऐसा सोचकर सभी लोगों को बुलाया। तो सभी लोग, बहुत लोग आए थे वहाँ उस समय में। इन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया। कुछ जगह में गया, वहाँ के सभी लोगों को आमंत्रित किया, सभी लोग आए हैं। तो उनके सामने अच्छे अच्छे विचार, समाज के निर्माण के लिए अच्छे अच्छे विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया। सभी लोग सुन रहे थे, बड़ी श्रद्धा से सभी लोग सुन रहे थे। कुछ समय हुआ तो उनमें से एक व्यक्ति उठकर इनके पास आकर कहा था कि महाराज जी, अब हमें घर जाना है, ऐसा कहा। नहीं, अभी मेरे विचार समाप्त नहीं हुए हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? तब उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आप तो महापुरुष हैं, हमारी भलाई के लिए बहुत कुछ विचार कह रहे हैं। हमें इतना समझ में आ रहा है कि आप हमारी भलाई के लिए कुछ तो कह रहे हैं, परंतु आप क्या कह रहे हैं? धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, ये बहुत कुछ कह रहे हैं आप। शास्त्र हैं, वेद, शास्त्र, धर्म, अधर्म, ये सब आप कुछ तो कह रहे हैं, ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बहुत समय हो गया, अब हमें घर जाना है, हमें भी बहुत कुछ काम है, और हमारे जो कुछ भी काम होते हैं उन्हें हमें ही करना पड़ेगा, कोई करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई लोग होते हैं कि हमारा काम करने वाला, तब सभी काम को उनको सौंप कर हम यहाँ बैठ सकते थे, लेकिन हमें बहुत कुछ काम है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा, इसीलिए हमें आज्ञा दीजिए, ऐसा कहा। आप महापुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं, हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमें और आज्ञा दीजिए, हमें जाना है, ऐसा कहा। ऐसा कहकर सभी लोग निकल गए। तब इसके बाद फिर ये सोचने लगे, तो मैं क्या करूं, किन से कहूं? यही समस्या हुई थी। अच्छे अच्छे विचार है तो मैं किन से कहूं, यही बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ऐसे सोचकर इसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, मैं कहना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए एक काम करूंगा, मुझे जो कुछ भी कहना है सब कुछ मैं कह दूंगा। जिनको चाहिए वो इसका स्वीकार कर देंगे, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं स्वीकार करेंगे, छोड़ दो। अभी किसके पास जाके किससे कहना है इसके बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी कहना है मैं सब कुछ कह दूंगा। जिनको ये विचार अच्छे लगेंगे तो वो आके अवश्य स्वीकार करेंगे, जिनको नहीं है वो नहीं स्वीकार करेंगे। कहना मेरा कर्तव्य है और स्वीकार करना लोगों का कर्तव्य है, ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत कुछ विचार कहकर कुछ ग्रंथों की भी रचना उन्होंने की थी। उनका वचन मतलब अच्छे विचारों को उपदेश करने के लिए जब वो प्रवृत्त हुए थे, उस समय में उनको कैसी स्थिति को देखना पड़ा, इसके बारे में उन्होंने ही अपने ग्रंथ के आरंभ में ही कहा था। एक श्लोक के द्वारा उन्होंने कहा था, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम, ऐसा उन्होंने कहा।
जिस स्थिति को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही इस श्लोक के द्वारा कहा था। बौद्धारो मत्सरग्रस्था, बौद्धा मतलब पंडित, संस्कृत भाषा में पंडित, संस्कृत भाषा में बौद्धा शब्द का अर्थ है ही पंडित। बौद्धारो मत्सरग्रस्था, मत्सर मतलब अहंकार, पांडित्य के अहंकार। जो पंडित लोग हैं वो पांडित्य के अहंकार से रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मैंने जो कुछ भी कहने के लिए गया उन्होंने नहीं सुना। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषितः, जो प्रभु होते हैं, जो महाराज होते हैं, उनका और एक अधिकार का अहंकार है, इसीलिए उन्होंने मैंने जो कुछ कहने के लिए गया तो उन्होंने नहीं सुना। प्रभवः स्मयदूषितः। तो बाकी जो लोग हैं अबोधोपहताश्चान्ये, बाकी जो लोग हैं उनको तो अबोध, अबोध मतलब अज्ञान, मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की योग्यता उनके पास नहीं, उतनी शक्ति उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति है तो मैं क्या करूं? तो मैं जो कुछ भी कहने के लिए प्रवृत्त था, लेकिन ये सब जीर्णम अंगे सुभाषितम, ये सब सिर्फ मेरे अंदर ही ये सभी विचार जीर्ण हो रहे हैं, इनको मैं किसी से भी कह नहीं पाया। ऐसी स्थिति मुझे हुई है तो मैं क्या करूं? अच्छा समाज के निर्माण के लिए मैं क्या करूं? कैसा प्रयत्न करूं? इसको मैं कैसा ठीक करूं? ऐसा उन्होंने सोचा था। और उनको जो दुख हुआ था, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए जो कुछ भी अच्छे विचार हैं उनको उपदेश करने में जब वो प्रवृत्त हुए थे, ऐसे संदर्भ में उनको जो समस्या हुई थी, प्राप्त हुई थी, उनसे वो दुखित होकर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहना था एक ग्रंथ के रूप में लिख कर रखा। तो ये कौन है? ये महापुरुष, इनका क्या नाम है? यही भर्तृहरि, इनका नाम है भर्तृहरि। इन्होंने 3 शतकों की रचना की थी। उनमें से पहला शतक ये है कि नीति शतक, नीति शतक कहते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ऐसा 3 शतक। एक एक शतक में भी 100-100 श्लोक होते हैं, उनमें भी 10-10 श्लोक का एक एक भाग होता है। एक एक विचार को लेकर 10-10 श्लोकों की रचना उन्होंने की थी। बहुत सारे विचार इस एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए, लोगों में एक सज्जनता को जागृत करने के लिए जो कुछ भी विचार चाहिए, सब हर एक विचार इन ग्रंथों में हमें उपलब्ध होते हैं। लोगों की भलाई के लिए, एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए, एक अच्छा समाज के निर्माण के लिए, धर्म का आचरण के लिए जो कुछ भी चाहिए, इन सभी विचारों को उन्होंने उस ग्रंथ में कहा था। तो इसीलिए हम ये सब इस संदर्भ में इसीलिए कहना चाहते हैं कि ये जो धर्म है, धार्मिक विचार जो होते हैं, हमारे जीवन की भलाई के लिए जिन विचारों की आवश्यकता और समाज का निर्माण, अच्छा समाज का निर्माण के लिए जिन विचारों की आवश्यकता होती है, ऐसे विचारों को हमें उपदेश करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं। ऐसे इन विचारों का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास होता है, और इन विचारों को हमें उपदेश करके मार्गदर्शन करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, और उन विचारों को ठीक से सुनकर उनका आचरण करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। ये दुनिया की स्थिति है। दुनिया की स्थिति कैसी है, इसे इस एक श्लोक में वो बता रहे हैं हमें। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए, मतलब ये बात जो है ये बहुत बहुत दुर्लभ विचार है। इसीलिए, परंतु इसके बिना, एक अच्छा समाज के निर्माण के बिना सभी लोग सुखी नहीं रह सकते हैं। परंतु उसके लिए जो प्रयत्न करना था उसे करने वाले, और उसके लिए जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने वाले लोग, और उसके लिए जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसे करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ये दुनिया की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों की भलाई के लिए, एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए, एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक समाज का निर्माण के लिए प्रयत्न करना हर एक व्यक्ति का भी कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने अंत में ऐसा कह दिया कि लोग तो मेरे बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मुझे जो कुछ भी कहना है मैं कह दूंगा, कहकर मेरा काम, मेरा कर्तव्य कहना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं सब कुछ कहूँगा, ऐसा कहकर उन्होंने अपने ग्रंथों में सभी विचारों को उपदेश किया। इसीलिए ऐसे जो विचार होते हैं इन्हें हमें उपदेश करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अच्छे अच्छे बातों को हमें कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसीलिए जब भी
कुछ अच्छे विचार हमारे सामने आते हैं, इनको अच्छी तरह सुनकर उसका आचरण करने से हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा और ये समाज भी सुखमय होगा। आज कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कि धर्म, ये सभी लोग धर्म के बारे में कहते रहते हैं, सब धर्म के बारे में उपन्यास करते हैं, प्रवचन देते हैं, क्या है ये धर्म। हम तो आज ऐसा टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है दुनिया में, हम ऐसा आधुनिक युग में पहुंच गए हैं, तो ऐसे संदर्भ में बहुत सारे नए नए पदार्थों को हम बना रहे हैं, कैसा कैसा वस्तुओं को हम बना रहे हैं, एक क्षण में बहुत बड़ा काम हो जाता है। इस दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति के साथ देखकर बात कर सकता है और चंद्रमंडल में जा सकता है, और एक ग्रह में, बाकी ग्रहों में भी जाने का प्रयत्न भी चल रहा है, उसमें भी बहुत दूर तक चल रहे हैं। इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, ऐसे समय में भी ये क्या पुरानी बातें आप करते रहते हैं, धर्म अधर्म पुण्य पाप, ये सब क्या है, शास्त्र, इनकी क्या आवश्यकता है। मनुष्य तो इतना बड़ा बुद्धिमान है, तो इन विचारों की आज के समय में इनकी क्या आवश्यकता है, ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते रहते हैं। परंतु यहाँ उन्होंने जो कहा वो सच है। मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे पदार्थों को हम बना रहे हैं, मनुष्य बना रहा है अपनी बुद्धि शक्ति से, बहुत सारे पदार्थों को बना रहा है, इनके द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, ये सब सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये बात जितनी सच है उतना ही सच है कि इस दुनिया में अभी भी दुख कम नहीं हुई है, दुख कम नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, ये जितना सच है, दुख इस दुनिया में कम नहीं हुआ है, ये उतना ही सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज भी दुख है दुनिया में, इतनी सारी सुविधाएं आ गई, फिर भी इतनी सारी सुविधाओं के बीच में भी दुख है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि दुख कम हो गया है दुनिया में, सुविधाएं बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु दुख कम नहीं हुआ है। अभी जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे एक संदर्भ में भी इस दुनिया में सुख था, सुखी लोग बहुत लोग थे। और आज इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद भी दुख भोगने वाले लोग इस दुनिया में बहुत लोग हैं, सभी सुविधाओं के बीच में ही रहते हैं, परंतु बहुत ही दुखित होते हैं। ऐसी स्थिति दुनिया में आज भी है। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय में भी सुखी लोग थे, और आज भी सुखी लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखी लोग और दुखी लोग दोनों भी पहले भी थे और आज भी हैं, ये तो सच है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। दुनिया में स्थिति बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये सब तो हो रहा है, परंतु दुख अब तक कम नहीं हुआ है। एक प्रकार से दुख कम हुआ है और दूसरी एक सुविधाओं से एक तरफ से दुख कम हुआ है और दूसरी तरफ से दूसरा दुख शुरू हुआ है। जो दुख पहले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे दुख आज हैं, इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, ये सच है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सुख और दुख इन दोनों को टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें सुविधा मिलता है, बस उतना ही। परंतु सुख और दुख इन दोनों का धर्म और अधर्म से ही संबंध है। धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख। ये कभी नहीं बदलता। दुनिया की स्थिति बदल सकती है, परंतु ये बात तो कभी नहीं बदलती है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, इन दोनों के साथ जो संबंध है ये कभी नहीं बदलता। परंतु जो धर्म है वो हमें सुख देने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता धर्म को होता है। वो जो माध्यम है वही ये सारी सुविधाएं हैं। धर्म क्या करता है? धर्म से अगर हमें सुख मिलना है तो किसी वस्तु के द्वारा, जिस वस्तु से हमें सुख मिल सकता है, ऐसे वस्तु हमें मिलता है, तो उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए अगर किसी वस्तु से हमें सुख प्राप्त होना है तब उसके पीछे धर्म होना ही चाहिए। अगर धर्म होगा तब उस वस्तु से हमें सुख मिलता है। अगर नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, वो वस्तु जब हमारे हाथ में ही रहती है तब भी हम उससे सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत लोगों के जीवन में इसका अनुभव भी है।
कि जिसे हम चाहते हैं वो हमारे हाथ में ही है, परंतु उसे सुख नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल गया, हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ काम समाप्त हो गया, सब कुछ मुझे मिल गया, अब इससे मैं सुखी रह सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं होता। कभी कभी कदाचित होता है, परंतु कदाचित ऐसा नहीं होता है। हम जैसा चाहते हैं ऐसा सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सुख का संबंध धर्म से होता है, दुख का संबंध अधर्म से होता है। इसीलिए ये बात जो है ये कभी नहीं बदलती है। सुख और दुख इन दोनों का धर्म और अधर्म के साथ संबंध है। चाहे दुनिया में कितना भी परिवर्तन हो जाए, दुनिया कितना भी परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, परंतु इसमें इस बात में तो कोई फर्क नहीं है। और हर एक मनुष्य को सुख प्राप्त करने की ही इच्छा है, दुख को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता है। जो भी हो, कोई भी हो, एक महाराज हो, एक सैनिक हो, एक पंडित हो, एक पामर हो, एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक मंद बुद्धि हो, एक बुद्धिमान हो, एक आस्तिक हो, एक नास्तिक हो, एक भारत देश का हो या विदेश में रहने वाला हो, कोई भी हो, किसी भी मज़हब के कोई भी लोग हो, उसके मन में यही इच्छा होती है कि मुझे सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये इच्छा सभी लोगों के लिए समान है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए यह इच्छा समान है। परंतु जितना सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ और एक बात भी है, सभी लोग सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो समान है सभी लोगों के लिए। और इसमें भी दो प्रकार के विचार हैं, इसमें भी दो विचार हैं। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी जितना संभव है उतना अधिक सुख सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। अभी दो लोग हैं, दोनों भी समान ही है, समान रूप से दोनों ने भी मेहनत की, परंतु एक को अधिक फल मिला, दूसरे को कम मिला। तब जिसको कम मिला वो चुप नहीं बैठता है, वो ऐसा नहीं कहता कि ठीक है कुछ तो मिल गया तो इससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, ऐसा वो कभी नहीं कहता है। मुझे क्यों कम मिला? दोनों ने भी समान रूप से ही मेहनत की, लेकिन उसको ज़्यादा फल मिला, मुझे कम मिला, ऐसा क्यों हुआ? ये कमी किस कारण से हुई है, इसके बारे में वो सोचता है। अगर कम हुआ तो क्या ये भी सुख ही है ना, कम सुख भी है, तो इससे तुम क्यों संतुष्ट नहीं होते हो? अगर ऐसा हम पूछेंगे तब वो क्या कहेगा? ऐसा नहीं, उसको जितना मिला उतना ही मुझे भी मिलना था, क्यों नहीं मिला? ऐसा ही वो हम कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सुख चाहिए और इसमें भी जितना संभव है उतना अधिक सुख सभी लोग चाहते हैं, ये एक विचार है। और यही दूसरा विचार ये भी है कि सुख को हम चाहते हैं और उस सुख को लंबा समय तक प्राप्त करना चाहते हैं। सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट तक सुख मिला तब उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर ऐसा ही सुख सदैव रहेगा तो कितना अच्छा होता है। जब भी जीवन में एक दिन बहुत सुख मिलता है तब हमारा मन क्या सोचता है? हम क्या सोचते हैं कि अगर मेरा जीवन भर ऐसा ही रहेगा तो कितना अच्छा होगा। वो ये जानता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, कल से ये सुख मिट जाने वाला है, इस बात को ये अच्छी तरह जानता है। जानकर भी इच्छा तो ऐसा ही करता है कि अगर यही सुख जीवन भर रहेगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हम सभी सुख चाहते हैं और उसमें भी जितना संभव है उतना अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और दीर्घकालिक जो शाश्वत सुख है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी लोगों की इच्छा है। वो कहीं भी हो इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति की भी इच्छा यही होती है। परंतु इच्छा तो ऐसी है, परंतु फल तो ऐसा हमें नहीं मिल रहा है। बहुत मेहनत हम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए ही हम जीवन भर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जीवन का हर एक पल का भी प्रयत्न इसी के लिए किया जाता है। जितना भी हम काम करते हैं ये सब कुछ किसके लिए? सुखी रहने के लिए। हम और हमारे परिवार, हमारे साथ जो लोग होते हैं, सभी लोगों के सुख के लिए ही हम ये सब करते हैं। परंतु इतना करने के बाद भी जितना सुख हम चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है, और दुख को हम कभी भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये दुख नहीं रुक रहा है। दुख तो हमें मिल रहा है, हम चाहते हैं कि कुछ तो एक थोड़ा सा भी मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हम चाहते हैं, परंतु दुख नहीं रुक रहा है। आज एक प्रकार का दुख, उसे ठीक करके हम बाहर आए, फिर थोड़ा सा समय तक सुखी रहा, फिर उसके बाद दुख प्राप्त हुआ। सुख और दुख एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन में तो इच्छा तो यही है कि हमें शाश्वत सुख चाहिए और दुख कभी भी नहीं होना चाहिए, ये इच्छा है, और हम मेहनत भी इसी के लिए कर रहे हैं। तो
हमारी इच्छा के अनुसार फल क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रश्न तो है, हर एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करना ही चाहिए, इसके बारे में हमें विचार करना ही चाहिए। इच्छा तो है लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे कि एक छात्र है, उसको फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की इच्छा है, फर्स्ट रैंक की इच्छा है, परंतु ये गया परीक्षा में गया, परीक्षा लिखा, लेकिन उसको फर्स्ट रैंक मिला, ये परीक्षा में फेल हो चुका था। मन में तो बड़ी इच्छा थी कि फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की इच्छा थी, परंतु ये परीक्षा में फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम यहाँ ऐसा पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके मन में तो बड़ी इच्छा थी कि फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में थी, लेकिन ये क्यों फेल हो गया? अगर हम ऐसा पूछेंगे तब क्या उसका जवाब होगा? उसके मन में इच्छा थी, परंतु इच्छा से कभी कोई पास नहीं हो सकता। इच्छा से भी मुख्य कारण क्या है? पढ़ाई, अभ्यास। अगर वो अभ्यास ठीक से करता था तब वो अच्छी तरह परीक्षा में पास होता था, लेकिन इसके मन में सिर्फ इच्छा थी कि इच्छा किसको नहीं होता? परीक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की इच्छा सभी लोगों के मन में होती है, परंतु जो पढ़ाई अच्छी तरह करता है वही फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकता है। ये इच्छा तो कौन मना करेगा उसे? अगर फर्स्ट रैंक मिलने वाला है तो कोई भी ना नहीं बोलेगा, परंतु उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। परंतु पढ़ाई इसने नहीं की तो उससे ये परीक्षा में फेल हो गया। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ इच्छा से फल नहीं मिल सकता, फल के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। अगर वो कारण ठीक होगा, अच्छी तरह होगा, तब फल अपने आप हमें मिल जाएगा। अगर वो विद्यार्थी जो छात्र है वो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में मार्क्स, रैंक अपने आप मिल जाता है। रैंक के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता, पढ़ाई के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसी से फर्स्ट रैंक भी मिल जाता है। तो ऐसा ही हम सबको इच्छा है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के मन में सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु इच्छा के अनुसार फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इच्छा से कभी फल नहीं मिलता। फल के लिए जो अलग अलग कारण होते हैं उनके द्वारा ही फल प्राप्त किया जा सकता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा है, परंतु इच्छा के अनुसार ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए जिस कारण की आवश्यकता है, जो काम इसे करना था, उसे ये नहीं कर रहा है, इसीलिए फल भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है? ऐसा शाश्वत सुख पाने के लिए हमें क्या करना है? इसी के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का आचरण करना है। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता, ये जो धर्म जो है ये किसी की भावना या तो किसी की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक विचार है। धर्म से सुख प्राप्त होने वाला है, ये विचार जो है ये एक वास्तविक विचार है। इस दुनिया में इस बात को सभी लोग नहीं मान सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, परंतु आपका नहीं मानने से ये सच विचार जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे कि इसीलिए इस धर्म को क्या कहते हैं? दुनिया का आधार कहते हैं। धर्म जो है ये दुनिया का आधार है, ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इमारत है, एक बहुत बड़ा भवन है, उसका एक आधार है, आधार खंबा एक होता है। ये इस भवन का ये जो खंबा है, ये जो आधार है, ये किसी की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक रूप में वो इस इमारत का आधार है। अगर कोई ऐसा कहेगा कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, इस भवन को ये आधार नहीं है, ये आधार है, इस बात को मैं नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं उस खंबा को तोड़ दूंगा, ऐसा अगर कोई कहेगा तब क्या होगा? नुकसान तो अवश्य ही होगा ही, नुकसान होगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? ये जो खंबा है ये एक भवन का ये आधार है, ये किसी की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक विचार है। ऐसा ही ये जो धर्म है ये दुनिया का आधार है, ये भी वास्तविक विचार है, ये किसी की कल्पना नहीं है। इसीलिए अगर हमें सुख चाहिए तब इस धर्म का आचरण हमें करना ही चाहिए। इसे करने से ठीक समय पर हम शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसी शाश्वत सुख को हमारी शास्त्रों की भाषा में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब क्या है? एक बार सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होना, और उसके बाद फिर हमें कभी भी सांसारिक दुख प्राप्त नहीं होता है।
जब हम सांसारिक दुखों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्त होना। लेकिन उसके लिए जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक बार बार इस संसार में हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। बार बार शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे, ऐसा शंकराचार्य जी अपने ग्रंथों में कहते हैं। और स्वयं यमधर्मराज जो मृत्यु की देवता है, यमधर्मराज उपनिषदों में, कठोपनिषद में ऐसा कहते हैं कि नसांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में, ऐसा यमधर्मराज कहते हैं। क्योंकि ये जो कठोपनिषद जो है, ये यमधर्मराज और नचिकेत, इन दोनों का संवाद उसमें है, कठोपनिषद में है। जब नचिकेत यमधर्मराज के पास जाता है, वो तो एक छोटा बालक था, उसे बहुत कुछ सीखना है, उस बालक से हमें इस बात को सीखना है। ये नचिकेत यमधर्मराज के पास जाता है। जब ये वहाँ जाता है तब यमधर्मराज वहाँ नहीं रहते हैं, तो ये यमधर्मराज का आने तक ये वही प्रतीक्षा करते रहता है ये बालक। बाद में यमधर्मराज आते हैं, आकर देखते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्यों यहाँ आए हो, क्या विचार है। तो ये उनसे, यमधर्मराज से ये नचिकेत, जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, उसका क्या तत्व है, इस संसार से मुक्त होने के लिए किस मार्ग में हमें जाना चाहिए, इसके बारे में पूछता है नचिकेत। इसका ज्ञान आप मुझे दीजिए, इसके बारे में आप मुझे उपदेश कीजिए। मोक्ष का क्या मार्ग है, ये धर्म क्या है, और जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा शाश्वत सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए, इन विचारों का आप उपदेश करें, ऐसा यमधर्मराज से पूछता है। तब यमधर्मराज पहले ही नहीं कहते हैं, जब ये पहली बार पूछता है तब यमधर्मराज नहीं कहते हैं। तब वो क्या करते हैं, सबसे पहले यमधर्मराज कहते हैं कि मैं इन सभी विचारों को तुम्हें उपदेश नहीं कर सकता हूँ, एक काम करो, तुम्हें कितनी संपत्ति चाहिए उसे पूछो, मैं दे दूँगा, तुम्हें दिलवा दूँगा, और तुम्हें लंबी अगर आयु अगर चाहिए, मैं उसे भी मैं तुम्हें दे दूँगा, इसके बारे में पूछना मत, ऐसा कहा। तब इसने भी नहीं छोड़ा, इसने बार बार पूछा था कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति आयु कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका ही ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जितनी भी संपत्ति हमारे पास होगी, जो कुछ भी इस दुनिया में वस्तु है, सब कुछ शाश्वत रूप से हमारे पास रहने वाला नहीं है, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शाश्वत तत्व जो है उसके बारे में मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा इसने पूछा। तब उसके बाद यमधर्मराज ने उपदेश करना शुरू किया। तब उसमें से पहला एक बात कहते हैं कि नसांपराय प्रतिभाति बालम, जो व्यक्ति इस दुनिया में अहंकार से मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसी भावना से, मैं ये जिस दुनिया को देखता हूँ यही सच है और इसके ऊपर जो है वो झूठ है, ऐसा मानकर अपने आप को ही सब कुछ मानता है, ऐसे व्यक्तियों को बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। पुनः पुनर्वशम आपद्यते में, उसको बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। अयम लोकः नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में, ऐसा वो यमधर्मराज वहाँ कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जब हम अपने जीवन में सिर्फ लौकिक दृष्टि से ही रहते हैं, तात्विक दृष्टि को जब हम नहीं अपनाते हैं, उस समय जीवन में हमें बार बार यमधर्मराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है कि बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसा बार बार ये जो जन्म लेना है, इसी को ही संसार कहते हैं। इसको एक जगह में एक फुल स्टॉप होना चाहिए, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये जो मोक्ष है, इसके द्वारा हम शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जन्म मरण जो है, इससे हम बाहर आ सकते हैं। इसीलिए ये जो साधना, इसके लिए जो मार्ग शास्त्रों में कहा गया है, ये बहुत बहुत आवश्यक है और यही सत्य है। ये किसी की कल्पना से किसी ने ऐसा इसको बनाकर नहीं बोला, ये वास्तविक स्थिति है। इसीलिए ये जो धर्म है, ये किसी की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक विचार है। इसीलिए इसकी आवश्यकता इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए है। हर एक व्यक्ति को भी अपने जीवन में धर्म का आचरण के लिए समय देना ही चाहिए और इसके द्वारा ही
हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और बाकी जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, पढ़ाई हो या नौकरी हो, कमाई हो, जो कुछ भी हो, ये सब सिर्फ इस जीवन को चलाने के लिए। इस जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं हम उनसे। इस जीवन को अगर हमें सार्थक बनाना है तब धर्म का आचरण हमें बहुत बहुत आवश्यक। धर्म का आचरण से ही इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए ये जो धर्म है ये बहुत बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के लिए धर्म की आवश्यकता विशेष रूप से है। इसीलिए ये बात जो है ये कभी नहीं बदलती है। दुनिया की स्थिति तो बदल सकती है, पहला जो सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, वो आज है, वो तो सच है। और आने वाले समय में इससे भी, आज जितना टेक्नोलॉजी है इससे भी 100 गुना ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में। परंतु जितना भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाए, धर्म धर्म ही है और अधर्म अधर्म ही है। सुख और दुख, इन दोनों में कोई ये इस बात में तो कोई भेद नहीं है, ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए सभी लोगों को इस सच के बारे में अवश्य जानना चाहिए और अपने जीवन में जो हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो कुछ भी विचार है, इन विचारों को अच्छी तरह, जितना समय, हर एक व्यक्ति को तो कुछ समय मिलता है, काम है, बहुत कुछ काम है, काम में जाना पड़ेगा, बहुत घंटों तक हर दिन काम रहता है सभी लोगों को, ये तो सच है। परंतु कुछ समय को इसके लिए हमें लेना चाहिए, रखना चाहिए, और उस समय में धर्म का आचरण से ये जीवन सार्थक बनता है। इसीलिए देखिए, हमारे देश में, इस दुनिया में, अभी हमारे देश में हम कहते हैं कि हमारा ये जो भारत देश है ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हम कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि आप अपने देश को श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो ये कैसा हो सकता? तो सभी लोग ऐसा ही कहेंगे, सभी लोग अपने अपने देश को श्रेष्ठ कहेंगे, मेरा देश जो है यही श्रेष्ठ है, ऐसा ही सभी लोग कहेंगे। तो इसमें विशेष क्या है? आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरा देश बहुत श्रेष्ठ है, इसमें क्या विशेष है? और भी अगर विचार करके देखेंगे तो इस विश्व में ऐसे कुछ देश हैं जहां टेक्नोलॉजी भारत से भी बहुत आगे है, ऐसा भी कुछ देश हैं। और ऐसा भी कुछ देश हैं जहां संपत्ति कुछ ज़्यादा ही है यहाँ से। और ऐसे भी कुछ देश है जो इस देश से बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़ा है। ऐसा भी कुछ देश हैं इस दुनिया में। तो इतने सारे देश इस विश्व में है, तो ऐसा होते हुए भी आप कैसा कह सकते हैं कि ये भारत देश जो है ये बड़ा है, ये श्रेष्ठ है? ऐसा आप कैसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। परंतु इन्होंने जो कुछ भी कहा कि विदेश में कुछ देश ऐसे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में हमसे भी बहुत आगे हैं, और संपत्ति में हमसे भी बहुत ज़्यादा है, और परिमाण में हमसे भी बहुत बड़ा है, ऐसा आप जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सब कब तक हमारे पास रहेंगे? जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही वो सब हमारे साथ रहते हैं। ये संपत्ति हो, ये टेक्नोलॉजी हो, जो कुछ भी हो, ये सब जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही हमारे साथ वो सब रहते हैं। जब हम एक बार इस शरीर को छोड़ देते हैं तब वो हमारे साथ नहीं आते हैं। परंतु हमारे देश में ऐसा एक पदार्थ है, वो जब तक इस शरीर में हम रहते हैं तब तक भी हमारे साथ रहता है। जब हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं उस समय में भी हमारे साथ आता है, और हमारे आगे की क्या स्थिति है इसका निर्णय उसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है, और उसके बाद किस जन्म हमें प्राप्त होना है, कैसा, किस लोक में हमें जाना है, कैसा जन्म हमें मिलना है, इसके बारे में निर्णय उसी के द्वारा किया जाता है। और ऐसा एक वस्तु हमारे देश में है, और वही हमारे देश में प्रधान माना जाता है, और वही है धर्म। धर्म हमारे देश में प्रधान है। इसीलिए ये जो धर्म है ये ऐसा एक पदार्थ है जो सदैव हमारे साथ आता है। जहाँ भी हम जाते हैं ये धर्म हमारे साथ आता है। जहाँ भी हम जाते हैं वो धर्म हमारे साथ आता है और हमारे आगे की स्थिति का निर्णय करता है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि देखिए, ये जो जन्म है बस यही सच है, और अब आगे का और एक जन्म है और इसके पीछे और एक जन्म था, इसको आप कैसा कह सकते हैं? ये सब झूठ है। कि किसने देखा ये सब? हम ये इसको देख रहे हैं कि ये जन्म जो है ये सच है, और आगे का जो जन्म है इसको हम कभी नहीं देखा, और पीछे का जो जन्म था उसको भी हमने कभी नहीं देखा, हमें उसका ज्ञान भी नहीं है। तो आप कैसा कह सकते हैं कि ये सच है? आगे एक जन्म है और पीछे एक जन्म था, इसके बारे में आप कैसा कह सकते हैं? और उस जन्म में भी हमें भलाई के लिए आप धर्म का आचरण करने के लिए कह रहे हैं, ये सब क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं।
परंतु इस प्रश्न का तो शास्त्रों में जवाब है ही। जैसे कि गीता में भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसा भगवान ने गीता में कहा। जैसा हर एक व्यक्ति हर एक दिन अपने कपड़े को बदलता रहता है, ऐसा ही हमारी आत्मा एक एक जन्म में एक एक शरीर को बदलती रहती है, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा। और इससे बढ़कर हमें इस बात का कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसा भी कहने वाले रहते हैं कि हम इन शास्त्रों को नहीं मानने वाले हैं, शास्त्रों को हम नहीं मानते हैं, ये सब आपका शास्त्र है, हम इन विचारों को हम नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। परंतु उनके लिए भी हम विचार करके देखेंगे कि ठीक है, अभी शास्त्रों में कहा गया है, हमारे लिए तो शास्त्रों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रमाण नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। और इनमें जो कहा जाता है वो सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जिनको शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम कैसा कहें कि पिछला एक जन्म था और आगे और एक जन्म है, इस विचार को हम कैसा कहेंगे? तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि इस दुनिया में हर एक कार्य का एक कारण होता है। अभी शास्त्रों के बारे में छोड़ दीजिए, अभी दुनिया की जो दृष्टि है इसके अनुसार हम विचार करके देखेंगे कि पिछला जन्म था या नहीं और आगे जन्म होगा या नहीं, इसके बारे में हम सोचकर देखेंगे कि इस दुनिया में हर एक कार्य का एक कारण होता है। अगर कारण ठीक होगा तब कार्य ठीक से होता है। इसका ज्ञान तो सभी लोगों को है, जो यहाँ का है, जो आस्तिक है, जो नास्तिक है, सभी लोगों को इस बात को मानना ही पड़ेगा कि अगर कार्य नहीं होता तो अगर कारण नहीं होता तब कार्य भी नहीं होता है। अगर कार्य ठीक से, फल अच्छी तरह है तो उसका कारण भी अच्छी तरह है, इसीलिए फल भी हमें मिल रहा है। कार्य और कारण इन दोनों का जो संबंध है वो सदैव ही रहेगा, क्योंकि हम जब भी कुछ काम करना चाहते हैं, अगर वो काम उसके लिए जो कुछ भी करना था सब कुछ हमने किया, जो कुछ भी करने के लिए कहा गया हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें फल नहीं मिला। कुछ फल के लिए हमने बहुत कुछ किया, अगर तुम्हें ये फल मिलना है, तुम्हें ये सब करना है, ऐसा किसी ने हमें कहा, तब हमने सब कुछ किया, लेकिन जिस फल को हमें प्राप्त करना था वो फल हमें नहीं मिला। तब हम क्या करते हैं? ठीक है, मुझे जो करना था सब कुछ किया लेकिन फल नहीं मिला, ठीक है इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा हम नहीं छोड़ते हैं। तब हम क्या करते हैं? फल क्यों नहीं मिला, इस फल को पाने के लिए जो कुछ भी करने के लिए कहा सब कुछ मैंने किया, लेकिन फल क्यों नहीं मिला? तब हम उसका विचार करते हैं, तो कई कमी हुई है, कारण जो है उसमें कई कमी हुई है। इस फल पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना था उसमें कई कमी हुई है, इसीलिए जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो कहाँ कमी हुई, हम उसका विचार करते हैं। सब कुछ मैंने क्या क्या किया, कल से मैंने क्या क्या किया, इसके लिए मैंने क्या क्या किया, कहाँ कमी हुई है, इसका हम बहुत लंबा विचार करते हैं। और उस विचार में जहाँ कमी हुई है उसको अच्छी तरह समझकर फिर एक बार जब हम करते हैं उसको भी इसे मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह हम करते हैं और उसके बाद फल मिलता है। ये सभी लोगों का अनुभव में है, इसको तो मानना, इस बात को सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि कारण से कार्य, फल हमें मिलता है। अगर फल नहीं मिला तो उसका अर्थ यह है कि कारण में कुछ कमी है। अगर कारण ठीक से होगा तो फल अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भी कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है, इसी को भी सभी लोग जानते हैं। सभी लोगों को इस विचार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया में, विश्व में ऐसे बहुत कुछ विचार हैं जिनका कारण अब तक बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ, कारण का ज्ञान। कुछ विचार दुनिया में ऐसे हैं, अगर हम किसी साइंटिस्ट के, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके पास जाकर हम पूछेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तब वो लोग भी कहेंगे कि इसका कारण अब तक पता नहीं चला, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर हमें और भी रिसर्च करना है, ऐसा ही वो लोग कहते हैं। अब कितने भी बड़े साइंटिस्ट के पास जाकर पूछे कि ये जो है ये ऐसा क्यों है, अगर आप ऐसा पूछेंगे तब वो लोग क्या बताते हैं कि
इसका कारण का ज्ञान अब तक नहीं मिला है, उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च तो चल रहा है, कब से चल रहा है? 100 साल, 200 साल। आज दुनिया में ऐसे कुछ विचार हैं जिनको जानने के लिए रिसर्च कई सदियों से चल रहा है, फिर भी उसका कारण क्या है इसका ज्ञान अब तक नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ विचार क्योंकि ये तो विश्व है, ये तो बहुत विस्तृत है, ये तो अनंत है विश्व, इसमें बहुत सारे विचार होते हैं जिनका कारण को जानना बहुत मुश्किल है। परंतु ऐसे विचारों में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, इसका कारण अब तक पता नहीं चला है। इतना ही वो लोग कहते हैं, वो ऐसा नहीं कहते कि इसका कोई कारण ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है, अगर हम ऐसा पूछेंगे इसका कोई कारण ही नहीं है, अपने आप ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं कहता है। वो क्या कहता है कि इसका कारण का ज्ञान अब तक पता नहीं चला, ऐसा ही कहता है। और अपनी नज़र से कुछ कारण वो कहता है, शायद ऐसा हो सकता है, इसका कारण ऐसा हो सकता है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा अपना अपना ज्ञान और अपने अपने संशोधन के अनुसार जो कारण उनको पता चला उसके बारे में वो कहते हैं। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि कारण के बिना कार्य कभी नहीं हो सकता। कोई भी कार्य हमें उपलब्ध हो रहा है उसका कुछ कारण होता ही है। ये सभी लोगों को इस बात को मानना ही पड़ेगा। तो ये साफ साफ है, ये विचार, इस विचार में कोई संदेह नहीं है, सभी लोगों को इस विचार को मानना ही पड़ेगा। अब जो प्रकृत विचार है इसमें हम आएंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आरंभ से अंत तक बहुत प्रकार के सुख है और दुख है। कुछ लोगों के जन्म दुख में ही होता है, कुछ लोगों के जन्म बहुत ही सुख स्थिति में कुछ लोगों का जन्म होता है। बहुत अमीर परिवार के घर में कुछ लोगों का जन्म होता है, कुछ जीवात्माओं का जन्म बहुत गरीबों के घर में होता है, और बचपन से ही बहुत सारे दुख इसको होते हैं। और कुछ लोगों के बचपन से ही बहुत सुखी वातावरण में रहते हैं। ये सब हो रहा है। ये जो सुख और दुख, ये दोनों जो है ये फल है। सुख और दुख ये दोनों फल होते हैं। जैसा अभी अभी कहा गया, जो भी फल है उसका एक कारण होना ही चाहिए, कारण के बिना फल कभी नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति बचपन से ही सुख या तो दुख को प्राप्त कर रहा है, इस सुख का और दुख का भी एक कारण होना ही चाहिए। जीवन में एक बार सुख हमें मिल रहा है, एक बार दुख मिल रहा है। कितने प्रकार के दुख हमें अब तक मिल चुके हैं और कितने प्रकार के दुख अब तक हमें प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता, कोई इसको नहीं गिन सकता है। जीवन में बहुत प्रकार के, एक दिन दुख है, एक दिन सुख है, एक दिन दुख है और एक दिन दुख सुख। अगर हम पूछेंगे कि आपने जीवन में अब तक कितने प्रकार के सुख आपको प्राप्त हुए, इन सब का भी आप कारण बताइए, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो कोई बोल नहीं सकता। आपको बचपन से जितने भी दुख आपको मिले हैं, इन सब का भी क्या कारण है आप बताइए, इसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता। अगर आप कारण, इन सुखों का और दुखों का कारण के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, तो अब आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि इनका कुछ कारण ही नहीं है? अगर हम ऐसा पूछेंगे कि तो वो लोग क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, कारण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण का ज्ञान हमें नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। क्योंकि अगर इसका कारण ही नहीं है, कारण के बिना ही सुख और दुख अगर हमें मिल रहे हैं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो दुनिया की स्थिति जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि दुनिया में हर एक व्यवहार कारण और कार्य, इन दोनों का जो संबंध है इसको लेकर ही होता है। हर एक काम कारण और कार्य दोनों का संबंध को लेकर ही हर एक काम होता है। इसीलिए हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते मुझे जो कुछ भी सुख और दुख मिल रहे हैं इसका कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण ही ये सब मुझे मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर ऐसा कह देंगे तो ये बहुत विरुद्ध हो जाएगा, दुनिया की स्थिति जो है इसका खिलाफ हो जाएगा, इससे विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए कारण और कार्य इन दोनों का एक संबंध होता ही है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से जितने सारे सुख और दुख मिल रहे हैं, इनका भी कुछ कारण होना ही चाहिए। यहां इस जन्म में हमें कुछ सुख और दुख जब मिल रहे हैं, इनका कुछ कारण को तो हम सोचकर कह सकते हैं कि ठीक है, मैं कुछ समय पहले ऐसा गलत काम मुझसे हुआ है तो उसका फल से मुझे दुख आज मिल रहा है, या तो मैंने
अपने बचपन में कुछ अच्छा काम किया तो उसके फल रूप में मुझे अभी सुख मिल रहा है। ऐसा कुछ विचारों के बारे में हम कारण के बारे में कह सकते हैं, परंतु जीवन में मिलने वाला हर एक सुख और हर एक दुख का कारण को हम बता नहीं सकते हैं। तो अब तब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कारण इस जन्म में नहीं मिला तो पिछले जन्म तक जाना ही पड़ेगा। इसका कारण जो है वो पिछले जन्म में है, इसका कारण का जो कर्म है वो पिछले जन्म में हमने किया। इसीलिए पिछले एक जन्म इसके पीछे एक जन्म था, इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों को विचार को छोड़ दीजिए, लौकिक दृष्टि से तर्क से जब हम विचार करते हैं तब भी इस बात को हमें लेना ही पड़ेगा। शास्त्र, ये जो शास्त्र जो है, ये शास्त्र तर्क के बिना किसी भी विचार को हमें उपदेश नहीं करता है। शास्त्र का ऐसा स्वभाव है, किसी भी विचार को अगर ये प्रस्तुत करेगा तब इसके पीछे तर्क होता ही है। तर्क को लेकर ही हर एक शास्त्र हमें एक एक विचार का उपदेश करता है। तो ये जो पुनर्जन्म जो है इसके पीछे भी तर्क है। तर्क से ही ये विचार शास्त्रों में, तर्कपूर्वक ही इस विचार को शास्त्रों में कहे हैं हमारे पूर्वजों ने। इसीलिए इसके पीछे भी जन्म था और आगे भी जन्म है। तो इसके लिए हमें धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा। ये धर्म ही एकमात्र वस्तु है जो हमारे साथ सदैव रहने वाला है। इसीलिए तर्क के दृष्टि से भी अगर हम विचार करेंगे तब हमें शास्त्रोक्त धर्मों का आचरण करना ही चाहिए। ये जो धर्म जो है ये बहुत बहुत आवश्यक है, इसका आचरण से ही हम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत विस्तृत विचार है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विचार हैं। इसीलिए किसी को भी शास्त्रों के बारे में या तो हमारी ये जो धार्मिक सनातन धर्म की परंपरा है इसके विषय में किसी को भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये सिर्फ अंध परंपरा है। ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, ये वास्तविक विचार है। परंतु इनका एक क्रम होता है, इसको हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। मतलब आज दुनिया में ऐसी भी कुछ जगह में स्थिति है कि कुछ लोग धर्म के नाम में कुछ भी करते रहते हैं, धर्म को नाम को लेकर धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं, धोखा भी देते हैं लोगों को। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, इस बात को भी हमें मानना ही पड़ेगा। परंतु धर्म ही धोखा है ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए, धर्म ही गलत है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर गलत काम कर रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों की ही गलती है, धर्म की गलती नहीं है। धर्म की जो व्यवस्था है इसकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है ये सभी लोगों की श्रेय के लिए इसका आचरण किया जाता है। क्योंकि हमारे धर्म में जो कुछ भी आचरण हम करते हैं तब उसमें हम अंत में क्या कहते हैं? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे धर्म की मुख्य प्रार्थना यह है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारी प्रार्थना है। तो हमारे धर्म हमें ये सिखाता है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, पूरे विश्व के बारे में, पूरे समाज के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। और एक बात भी हमारे धर्म में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। ये एक बहुत बड़ा उपदेश है हमारे धर्म का। इसका अर्थ क्या है? आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भी अपना समान जो देखता है वही ठीक व्यक्ति है, वही असली व्यक्ति है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति, सभी लोगों को जो अपने जैसा देखता है। मतलब अगर कोई आके मुझे पीड़ा देगा तो मुझे जितना दर्द होगी, अगर मैं और किसी को पीड़ा दूंगा तो उसको भी उतना ही दर्द होती है। अगर कोई आके मुझे मदद करेगा तो उससे मुझे जैसा भलाई होती है, अगर मैं दूसरों की मदद अगर मैं करूंगा तब उसकी भी भलाई होती है। इसीलिए मुझे सदैव दूसरों का उपकार करते रहना चाहिए, किसी को भी मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाना है। ऐसा सोचकर जो जीता है वही सज्जन है, उसका जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। उसकी जो दृष्टि है, ऐसी दृष्टि जो है यही वास्तविक दृष्टि है, ऐसा हमारा धर्म ने उपदेश किया।
आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति, उसकी जो दृष्टि है वही असली दृष्टि है। ऐसा ये हमारा धर्म का उपदेश है। इसीलिए हमारा ये जो धर्म है ये सिर्फ कुछ लोगों की भलाई के लिए ही नहीं कहा गया है, इसका फल, इसमें हम जो कुछ भी करते हैं ये विश्व के लिए करते हैं, विश्व के लिए ही सब कुछ यहाँ कहे गए हैं। इसीलिए इस विषय को सभी लोगों को अच्छी तरह जानना चाहिए। हमारी ये जो परंपरा है इसकी महत्ता को सभी लोगों को अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि इस धर्म की परंपरा में जो लोग आए हैं उनको ही इस धर्म का ज्ञान ठीक से नहीं है, वही इस धर्म के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही इसका प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसका ज्ञान इस परंपरा के लोगों के पास ही नहीं है। परंतु ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म है, ये पूरा विश्व की भलाई के लिए, और हमारे चिंतन जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि मेरा परिवार को सुखी रहना चाहिए, मेरा परिवार को श्रेय मिलना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु हमारे धर्म क्या सोच रहा है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसा कह रहा है। हमारा धर्म तो ऐसा उपदेश दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा दुनिया ही मेरा परिवार है। और एक विचार, अंत में एक विचार कहकर हम समाप्त करेंगे कि हमारे धर्म में जो तत्व कहा गया है, अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत तत्व, ये एकमात्र अद्वैत तत्व, एकमात्र तत्व है जो इस दुनिया में हर एक चेतना को भी जोड़ता है। इस अद्वैत सिद्धांत के द्वारा ही इस दुनिया में सभी लोग जुड़ते हैं। क्योंकि अद्वैत सिद्धांत में क्या कहा गया है? पूरे विश्व में एक ही चेतनात्मा है, चैतन्य एक ही है, हर एक व्यक्ति के अंदर रहने वाला चैतन्य एक ही है। परंतु जो माया है, जो प्रकृति है, उसके अनुसार ऐसे दुनिया में बहुत कुछ भेद आए हैं। ये द्वैत, इसी को द्वैत कहते हैं। ये जो द्वैत सब कुछ है ये सिर्फ माया के कारण आया हुआ है। वास्तविक रूप से अद्वैत तत्व जो है वो एक ही है। हर एक व्यक्ति में, हर एक जानवर में, हर एक प्राणी में, मनुष्यों से लेकर प्राणियों तक हर एक जीवात्मा में रहने वाला चैतन्य एक ही है। इसी तत्व को जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। इस तत्व को उपदेश करने के द्वारा शंकराचार्य जी ने सभी लोगों में एकता लाई थी। इसीलिए हम शंकराचार्य जी को क्या कहते हैं? जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य कहते हैं। जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ है? जगत गुरु शब्द का बहुत सारे प्रकार में उसका अर्थ को हम कह सकते हैं, परंतु उनमें से अब के लिए जो चाहिए उसे हम कहेंगे। उसका एक अर्थ को हम अब कहना चाहते हैं। शंकराचार्य जी ने इस दुनिया के लिए अद्वैत तत्व का उपदेश किया, जिस तत्व से पूरा विश्व ही जुड़ जाता है, एक साथ जुड़ जाता है। ऐसा अद्वैत तत्व को शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। मतलब ये जो अद्वैत तत्व जो है इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। इस बात को उपनिषदों में कहा जा रहा है, इस बात को उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मनिखल्वरे दृष्टे श्रुते मते विदिते इदं सर्वं विदितम्, आत्मनिखल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। गीता में भी भगवान ने कहा यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिस अद्वैत तत्व को जानने से इस दुनिया में कुछ जानने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ इसका ज्ञान में मिल जाएगा, ऐसा तत्व को मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। ऐसा भगवान ने अर्जुन को अद्वैत तत्व को गीता में उपदेश किया। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को इस अद्वैत तत्व के बारे में उपदेश किया। क्यों उपदेश किया? क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को अद्वैत तत्व के बारे में उपदेश करने के द्वारा उसका जो कर्तव्य है उस मार्ग को दिखाया भगवान ने। क्योंकि उस समय में क्या स्थिति थी कि अर्जुन ने क्या किया? मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कह दिया और अपने शस्त्र को छोड़ दिया। मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहा। देखो, अगर तुम युद्ध करोगे तब तुम्हें राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, तुम अच्छे अच्छे भोग, राज्य का भोग जो है वो सब मिलेंगे, बहुत सारे सुख तुम्हें प्राप्त होंगे, इसीलिए तुम युद्ध करो। ऐसा अगर हम कहेंगे तब उसके लिए भी अर्जुन ने कह दिया कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इससे भी भीख मांगना चाहता हूँ, परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर मुझे भीख मांगने की स्थिति आएगी तब उसके लिए भी मैं तैयार हो जाऊँगा,
परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह दिया। इसलिए ऐसे संदर्भ में अगर हम अर्जुन को तुम्हें राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, इसीलिए तुम युद्ध करो, ऐसा अगर हम कहेंगे, तब उसने क्या कहा, वो तब भी नहीं सुनने वाला है। तब वो कहेगा कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसने कह दिया। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो युद्ध है, इसका युद्ध मतलब स्वधर्म, क्षत्रियों का ये स्वधर्म है। इसीलिए युद्ध करना जो है, इसका फल सिर्फ राज्य और सिंहासन नहीं है, राज्य या सिंहासन ही इसका फल नहीं है। इसका अंतिम फल ये होता है कि अद्वैत तत्व, अद्वैत तत्व तक प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करना, यही युद्ध का अंतिम था। युद्ध मतलब स्वधर्म, किसी का भी कुछ स्वधर्म जब होता है, उसका अंतिम लक्ष्य यह होता है कि मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा भगवान ने कहा। और मोक्ष प्राप्त करने, इसीलिए भगवान ने अंत में गीता में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में इसके बारे में, इस तत्व के बारे में, अद्वैत तत्व के बारे में उपदेश किया। और भगवान ने कहा था कि ये जो अद्वैत तत्व है, जिसे जानने से जानने के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, ऐसा तत्व को मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। और जिस अद्वैत स्थिति में प्राप्त होने के बाद कुछ भी दुख हमें नहीं होगा, ऐसा तत्व को मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, ऐसा भगवान ने गीता में उपदेश किया था। क्योंकि ये जो अद्वैत तत्व जो है, ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, अद्वैत तत्व की स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, उस समय में हमें कोई डरने की बात नहीं होती है, दूसरा पदार्थ ही नहीं है। ऐसे स्थिति में हम पहुंच जाते हैं अद्वैत के सिद्धांत के द्वारा, ये इसका मार्ग यहाँ कहा गया है। ऐसे स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, तब हमें दुख की कोई संभावना ही नहीं है, दुख की कोई बात ही नहीं आती है वहाँ। क्यों? क्योंकि उपनिषदों में एक छोटा सा संदर्भ है कि एक बार ब्रह्मा, वो अकेले रहते हैं। ब्रह्मा तो सभी लोगों का सृष्टि करता है, सभी लोगों की सृष्टि तो बाद में हुए, उन सभी सृष्टि से पहला कौन था? ब्रह्मा एक ही था। उस समय में पहला ब्रह्मा ने ऐसा सोचा था कि यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, इससे मुझे क्या होने वाला है, ऐसा सोचकर डर रहा था। पहला ब्रह्मा भयभीत हुआ था, क्योंकि वो उसके अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं था। इसे देखकर वो पहला भयभीत हुआ था। और उसके बाद कुछ समय होने के बाद ब्रह्मा ही सोचने लगा कि जब मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तब मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। डर हमेशा दूसरे पदार्थ से ही होता है। मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, तब मुझे डरने की, पहला तो ऐसा सोचकर डर रहा था कि मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, तब मुझे क्या हो जाएगा, ऐसा सोचकर डर रहा था। तब उसके बाद थोड़ा सा सोचने के बाद उनको ही पता चला कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता नहीं है। डर हमेशा दूसरा पदार्थ से ही आता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, दूसरा पदार्थ ही नहीं है, तब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। और इसका विचार करने से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि पूर्ण रूप से अद्वैत स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, जिसके बाद, जहां पहुंचने के बाद हमें दुख बिल्कुल नहीं होगा, सभी दुखों से हम मुक्त होकर श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। ये इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो उसके लिए स्वधर्म आचरण से हमें शुरू करना है। स्वधर्म आचरण को अच्छी तरह करने के द्वारा हमें ऐसी स्थिति में पहुंचकर इस संसार से मुक्त होना चाहिए, तब हम शाश्वत सुख को वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जीवन का ये मुख्य उद्देश्य है। इस बात को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। इसी बात को कहने के लिए हमने इतना समय लिया, तो आप सबको इस संदर्भ में इस विचार को हम कहना चाहते हैं कि धर्म जो है, इसकी आवश्यकता हर एक समय में भी हमारे लिए है, परंतु इसकी महत्ता को हमें जानना चाहिए। जानकर धर्म का आचरण इस जीवन में कितना आवश्यक है, इस बात को अच्छी तरह जानकर आचरण करना चाहिए। इस बात को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और इसी बात को हमें उपदेश करने के लिए ही जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने 1200 साल पहले हमारे इस देश में अवतार किया। सभी लोगों को इन विचारों के बारे में उन्होंने उपदेश किया, विस्तृत रूप से सभी लोगों को उन्होंने इन विचारों को उपदेश किया। ऐसा हम, इसीलिए उन्होंने जिस मार्ग को दिखाया, उस मार्ग में जाना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने इस दुनिया में सबसे बड़ा जो तत्व है,
जैसा अभी अभी हमने कहा, जिसके ऊपर जानने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा तत्व का उपदेश उन्होंने दिया। इसीलिए उनको हम जगत गुरु कहते हैं, जिन्होंने इस जगत में ही सबसे बड़ा तत्व, जिसके ऊपर जानने का कुछ भी नहीं है, ऐसा तत्व को उन्होंने उपदेश किया। इसीलिए हम उनको जगत गुरु कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम कुछ लोगों को पंडित कहते हैं। किन को हम पंडित कहते हैं? जो बहुत विचारों को जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम पंडित कहते हैं। और एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति और एक है, वो ये पंडित जितना जानता है उतना भी जानता है, और उसके आगे का, उसके ऊपर का जो विचार है उसको भी ये जानता है। तब उसको हम क्या कहते हैं? इससे भी बड़ा पंडित वो है, ऐसा हम कहते हैं। और तीसरा और एक व्यक्ति है, ये दोनों जितना जानता है वो सब जानता है, और उसका ऊपर का जो विचार है उसको भी वो जानता है। तब उसको हम क्या कहते हैं? ये दोनों से भी ये बहुत बड़ा पंडित है, ऐसा हम कहते हैं। एक पंडित से ये दूसरा पंडित है, अधिक बड़ा पंडित है। इस बात को हम किसके आधार पर कहते हैं? कि एक एक पंडित के पास जितना ज्ञान है, जितने विचारों का, ऊपर ऊपर जितना विचार होते हैं, उनका ज्ञान को लेकर हम ऐसा कहते हैं कि ये बड़ा पंडित है, इनसे भी ये बहुत बड़ा पंडित है, इनसे भी ये बहुत बड़ा पंडित है, ऐसा हम कहते हैं। तब ये जो ज्ञान है, इसमें सर्वोच्च ज्ञान क्या होता है? कि सर्वोच्च ज्ञान वही हो सकता है कि जिसके ऊपर जानने के लिए कुछ भी विचार नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जो होता है, उसका ज्ञान जो है वो सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो पूरा विश्व में ऐसा ज्ञान क्या है? वही अद्वैत तत्व है, जिसके बारे में जैसा अभी अभी कहा गया, स्वयं भगवान ने ही कहा, यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसा अद्वैत तत्व जो है, ये सबसे ऊपर का विचार है। और इस विचार को जो जानते हैं वो सबसे बड़ा पंडित होते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। ऐसा ज्ञानी और ऐसे गुरु शंकराचार्य जी है, इसीलिए हम उनको जगत गुरु कहते हैं। इसीलिए ये जो धर्म है, इसकी आवश्यकता को सभी लोगों को जानना चाहिए। इस परंपरा की जो महत्ता है, इसको सभी लोगों को जानना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी हमने कहा वो आपको समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया है, ऐसा हम मानते हैं। अगर कुछ लोग ऐसा, और कुछ लोगों को ये समझ में आया नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ भी हम कुछ कहते हैं, हम जानते हैं कि जहाँ भी हम कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम जो कुछ भी कहते हैं पूरा समझ में आ जाता है। और कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं कि थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, ऐसा भी कुछ लोग रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं, क्या कह रहे हैं स्वामी जी, क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल हमें समझ में ही नहीं आया, बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा भी कहने वाले लोग कुछ लोग रहते हैं। और ऐसा भी कुछ लोग रह सकते हैं कि ये कब समाप्त करेंगे, ऐसा भी सोचने वाला कुछ लोग रह सकते हैं, कब समाप्त करेंगे, ये कब ख़त्म करेगा, अभी बीच में उठ के जाना, ये तो अच्छा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये संस्कार नहीं होता, इसलिए कब समाप्त करेंगे, ऐसा भी कुछ सोचने वाले भी लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि जब हम शास्त्रों के विचार के बारे में कहते, परंतु हमारा काम यही होता है कि शास्त्रों में क्या कहा गया उसे कहना हमारा काम होता है। धर्म के बारे में क्या कहा गया उसके बारे में कहना ही हमारा काम है। तो हम हमारा काम ही कर रहे हैं। परंतु हम जानते हैं कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। परंतु तो यहाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर आप जानते हैं कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तब आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोग पूछ सकते हैं। परंतु हम जो कह रहे हैं शायद ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, परंतु फिर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों को हम जो कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें समझने के लिए कुछ है। अब तक हमें समझ में नहीं आया, फिर भी हमें समझने के लिए बहुत कुछ हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में है। ये विचार सभी लोगों को मिलना चाहिए, इसका ज्ञान सभी लोगों को मिल जाए, हम इसलिए कह रहे हैं। शायद हमने जो कुछ भी कहा वो सभी लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, परंतु समझने के लिए बहुत कुछ है हमारे धर्म में। हमारी ये जो परंपरा है इसमें बहुत कुछ विचार है, गंभीर विचार है, जिनको समझने के लिए अलग से मेहनत करना चाहिए। ये विचार सभी लोगों को समझ में आए, इसीलिए हम कह रहे हैं, इस बात को हम इसीलिए कह रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत कुछ विचार है हमारे धर्म में। ये एक साधारण परंपरा नहीं है, ये बहुत विशिष्ट परंपरा है। इस बात को सभी लोग समझ जाए, इसीलिए हम ये सब कह रहे हैं। इसीलिए इस परंपरा का अनुसरण सभी लोग करें और जीवन को सार्थक बनाए, ऐसा हम इस संदर्भ में कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने हमारे देश के
चार दिशाओं में चार आमनाय पीठों की स्थापना की। उनमें से श्रृंगेरी शारदा पीठ जो है ये एक ज्ञान का पीठ है, इसीलिए इस पीठ में शंकराचार्य जी ने देवी शारदांबा की प्रतिष्ठा करके इस पीठ की स्थापना की, इसीलिए इस पीठ को शारदा पीठ कहते हैं। उन्होंने चार दिशाओं में चार आमनाय पीठों की स्थापना की, श्रृंगेरी में, द्वारका, बदरी और पुरी क्षेत्रों में। इनमें से एक पीठ को उन्होंने उत्तर दिशा में जो चार धाम हैं उनमें से एक धाम में यानी बद्रीनारायण क्षेत्र, बद्रीनाथ में उन्होंने प्रतिष्ठा, बद्री पीठ कहते हैं, ज्योतिष पीठ कहते हैं, वहाँ एक पीठ की स्थापना उन्होंने की थी। और पूर्व और पश्चिम के जो दो पीठ हैं इनको उन्होंने हमारे शास्त्रों में जो मोक्षपुरी कहे गए हैं ऐसे जगह में, पुरी और द्वारका, ऐसा जगह में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। और एक पीठ जो दक्षिण का जो पीठ है इसको उन्होंने ज्ञान के पीठ के रूप में और तप के पीठ के रूप में, जहाँ ऋष्यशृंग महर्षि ने तप की थी, ऐसे तप किया था, ऐसे पवित्र क्षेत्र में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। और इस पीठ की अविच्छिन्न परंपरा है, जहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव अब इस पीठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं, 36वें शंकराचार्य के रूप में इस पीठ में विराजमान है, जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज जी। उनकी कृपा से आप सभी को भी सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है कि आज ऐसे लोग हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, कि आप सब इस देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्थान में रहकर इस देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है, क्योंकि हमारा ये जो भारत देश है ये सबसे श्रेष्ठ देश है, और इस देश को और भी बढ़ाने के लिए सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अब ये देश अच्छी स्थिति में आ रही है, अच्छी स्थिति में प्राप्त हो रहा है, इस देश में अच्छी स्थिति प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत संतोषजनक बात है। कुछ साल पहले जैसा था और अब जैसा है, इन दोनों को अगर हम देखेंगे, तुलना करके देखेंगे, तो बहुत अभिवृद्धि काम यहाँ इस देश में हुआ है। ऐसा काम यहाँ हुआ है तो ये आप सबका जो प्रयत्न है, ऐसे लोगों का जो प्रयत्न है जो अच्छे अच्छे स्थान पर रहकर इस देश के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसे आप सब लोगों की वजह से ऐसी अभिवृद्धि यहाँ हो रही है, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और आने वाला जो समय है ये हमारे देश के लिए और भी अच्छा समय है, और भी अच्छा समय अभी आने वाला है हमारे देश में। कुछ समस्याएं तो हर जगह में रहती है, संसार में हम जहाँ भी जाएंगे, कितना भी बड़ा देश में हम जाएंगे, वहाँ कुछ प्रकार के समस्याएं होती ही है, परंतु हमें देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए और ऐसा काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसीलिए अब तक जितनी सावधानता से हमने काम किया, और इससे भी अधिक सावधानता से, इससे भी अधिक सामर्थ्य से आने वाले समय में हमें काम करना चाहिए, जिसके द्वारा ये देश इस दुनिया में सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सर्वोच्च स्थान में अवश्य ही पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा काम, इसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, और ऐसा काम आप तो करने वाले ही हैं, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और देवी जगदम्बा की कृपा से, हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा से इसके लिए और भी शक्ति आप सबको प्राप्त हो, इसके द्वारा और भी अच्छे अच्छे काम हो जाए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आज, क्योंकि आज दुनिया में पूरा विश्व आज भारत को कैसा देख रहा है, दुनिया की दृष्टि अभी बहुत बदल गई है, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर से इस देश को दुनिया के सभी लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में है, और ऐसा भी एक दिन अवश्य ही आएगा कि पूरे विश्व में लोग कहेंगे कि इस दुनिया में ही, पूरे विश्व में ही भारत ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा संदर्भ भी आएगा, अवश्य ही आएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग कहेंगे कि अब, क्योंकि अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये देश जो है ये बहुत सबसे आगे है, कुछ विचार में ये सबसे आगे हैं, ऐसा कुछ देशों के बारे में लोग कहते हैं, परंतु आने वाला समय में एक ऐसा समय अवश्य आएगा कि हर एक विचार में भी ये देश सबसे आगे है, ऐसा लोग कहेंगे, पूरे विश्व के लोग कहेंगे। ये ऐसी स्थिति भी अवश्य ही आएगी, ऐसा हम आना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके लिए, ऐसा काम करने के लिए हमारी तरफ से जो कुछ भी करना है उसे हम अवश्य करेंगे, जो कुछ भी होना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। और सभी लोगों को भी अपना अपना
कर्तव्य को अच्छी तरह ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए सभी लोगों को भी ऐसा अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में कहकर और एक बार सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस संदर्भ में राम माधव जी, आदरणीय राम माधव जी ने इसके लिए अच्छी व्यवस्था की, हम इस संदर्भ में उनको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्रीनिवास जी, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज सबको और एक बार आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। Friends, we have had a very profound spiritual address from Pujya Swamiji. Talked about cause and effect, and where science, the frontiers that science could not break, how spirituality has transcended those frontiers. He talked about it, and in his own inimitable way, he talked about the importance of our dharma. But towards the end, he also emphasized on the importance of taking this country forward. Here I would like to tell our friends that India Foundation is known for geostrategy, geopolitics, international relations and all that. In fact, one of my team members also asked me, why are we having a spiritual discourse? So I told him, this is also a part of geostrategy. Those who are involved in geostrategy must understand India's real strength, which lies in its great wisdom, great spirituality. A glimpse of it we have had from Pujya Swamiji. Swamiji mentioned it's a vast ocean, out of which we have had a semblance of it, a little bit of it. But here I want to make one honest confession. Sringeri Mutt, as Pujya Swamiji himself mentioned, is one of the most traditional mutts out of the 4 mutts, the most traditional mutt. And general tradition has not been for Mahaswamiji to come out and give lectures in public places like this. Generally, it's a very revered mutt. Devotees go in lakhs and listen to the discourses there. But here, Uttaradhikari Puja Mahaswami has taken this initiative of going out and meeting people in public fora like this, giving the spiritual discourse and ideas to us, to the Vyapak society, wider society. That's a very good thing happening to our dharma, friends. Greatest challenge to our dharma has been that this dharma has always wanted people to come to it. But a time has come where dharma has to go to people, and Pujya Mahaswamiji has said that, tradition rolling in, this great mutt, Sringeri Mutt is greatly respected, and in the last 10 days, Mahaswamiji has met so many groups, so many people. Today he took time out to come and meet with us also. So, part of our geostrategy was to have, Sringeri Mutt come out and meet with all of us. And Pujya Swamiji is very graceful, and we are very grateful to Pujya Swamiji for coming out and doing this. Swamiji, बहुत धन्यवाद आपको. Thank you, Ram Madhav ji. I'll now request Shri Dinesh Goyal of Shubh Industries to kindly come onto the stage to felicitate His Holiness Shankaracharya. Srinivas ji will join. I'll now request Shri Srinivas ji also to join Shri Dinesh Goyal ji to felicitate Pujya Swami ji. Afterwards, चलो श्रीनिवास जी का वोट ऑफ थैंक्स के बाद थोड़ा फर्स्ट रोज में जो है पहले आएंगे, ऊपर स्वामी जी के दर्शन कर लेंगे, बाद में बाकी लोग आए. जो भी ऊपर आ रहा है, प्लीज मेक श्योर यू लीव योर फुटवेयर बिहाइंड. पोडियम के पास फुटवेयर छोड़ सकते हैं. व्हाइल गोइंग बैक यू कैन टेक इट. सामने आइए, वो बताएंगे क्या करना. श्रीनिवास Please remain seated. Darshans are only after vote of thanks. Please remain seated. Please remain seated.
Srinivas. I'll now request K. Srinivas, the President of India Habitat Center, to please propose a vote of thanks. Om Namo Narayana Namaha. We are honored by the gracious presence of Swamiji, who has come and delivered an extraordinarily profound lecture to us. And Swamiji's presence has really not only enlightened us, but it has made this entire place extremely pious. I'm extremely grateful to him. And to Sri Ram Madhavji, the India Foundation, and to all my colleagues of the India Habitat Center, and all of you who have come, who have joined this today's discourse. And I, once again, on behalf of all of you, on my personal behalf and on the behalf of India Habitat Center, I once again express my heartfelt gratitude to Sri Param Pujya Swamiji for having come and graced this occasion. Om Namo Narayana Namaha. Now, Parampuj Swamiji will give some blessings to Dr. Ram Madhav and Sri K. Srinivas.